Hello students, I am going to continue with the chapter integration of 12th standard. Question number 1, exercise 3.4 and example number 9. So we already learned about the example number 7. Example number 8 and 10 for your homework. Just I am going to explain you the example number 9. So see, the I is equals to integration of 2x square minus 1 upon x raised to 4 plus 9x square plus 20 dx. Now see, in what is the different part in this example? You are given the x raised to 4. So here we consider this as a like this one, that is x square bracket square, yes, plus 9x square and plus 20, and as like the quadratic equation, just you have to find out the factors of 20 whose addition is 9. So the factors are 5 and 4, plus 5 and plus 4, since all the signs are positive. And so here we get the factor, we can directly write it, that is x square plus 5 and x square plus 4. So 2x square minus 1 upon x square plus 5 and x square plus 5. एक बार आपको ये फैक्टर्स मिल जाते हैं तो आगे का एग्जाम्पल्स बहुत ही ईजी है. तो ये जो एग्जाम्पल है वो हमने लेट करके साइड में ले लिया. 2x square minus 1 upon x square plus 5 in second bracket x square plus 4. Just since there are two brackets, we consider the two constant, that is a upon x square plus 5 plus b upon x square plus 4. So after taking the LCM, x square plus 5 and x square plus 4, it is the LCM, and these two brackets will cancel with these two, and taking cross, so we get a into x square plus 4 and b into x square plus 5, and this numerator is as it is since the denominator is cancelled. Now how to put down the values? Now see, in the denominator of the a there is x square plus 5, so we have to consider x square plus 5 और x square plus 4 is equals to 0. तो पहले मैंने ले लिया x square plus 4 is equals to 0. So what is the value of x square? X square is minus 4. Similarly, simultaneously we also find out this value. X square plus 5 is equals to 0, so x square is equals to minus 5. And now we are going to put it in the equation, this equation, yes. So put x square is equals to minus 4. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x square is equals to minus 4. तो जहाँ पर भी x square है वहाँ पे हमें एक minus 4 वैल्यू पुट करना है. So 2 into minus 4 minus 1, a into minus 4 plus 4, b into minus 4 plus 5. Now this minus 4 plus 4 cancel, a 0 हमें मिला. So 4 2s are 8, so minus 8 and minus 1, so here we get minus 9 is equals to b, and so the b का वैल्यू हमें मिला minus 9. And now to find the value of a, we put, that is x square is equals to x square plus 5 is equals to 0, and so we get x square is equals to minus 5. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है x square is equals to minus 5, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. सो 2 into minus 5 minus 1 is equals to a into, yes, the value of x square is minus 5 plus 4 and plus b into bracket x square का वैल्यू है minus 5 plus 5. Now this minus 5 plus 5 will get cancel. So यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0 होगा. यहाँ पे 5 2s are 10, minus 10 and minus 1, that is minus 11. So यहाँ पे हमें वैल्यू मिला है, मैंने एक स्टेप स्किप किया है. माइनस a is equals to minus 11, so दोनों साइड का प्लस प्लस हो जाएगा, so a is equals to 11. So in this way here we get the value of a as a 11 and b is a minus 9. And now we are putting this value in this star equation, which is the substitute of this whole. जो एग्जाम्पल है उसका ये सब्स्टिट्यूट है. सो a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब a क्या है 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस, नाउ सी द वैल्यू ऑफ b. सो b इज minus 9, so minus 9 upon x square plus 4. And now we are going to separate this. So 11 upon x square plus 5 dx minus, that is plus minus minus 9 upon x square plus 4 x square plus 4 dx. And now we are going to take it outside. 11 upon 11 integration of 1 upon x square plus, we are also going to write it in the square form. So root 5 bracket square minus 9 integration of 1 upon x square plus 4 का square 2 का square, that is 4. And now this is the formula of, yes, 1 upon x square plus a square. इसका formula क्या हमने सीखा था, that is 1 upon a tan inverse x upon a. तो 11 into, yes, 1 upon a, that is 1 upon root 5 tan inverse x upon a, that is x upon root 5,
अगेन 9 इंटू yes 1 upon a, that is 1/2 tan inverse x upon 2 plus c. And now the last step, that is 11 upon root 5 tan inverse x upon root 5 minus 9/2 tan inverse x/2 plus a. This is the answer of this example. Now see the example number 11. So I is equals to integration of 2x upon 2 plus x square in second bracket 3 plus x square dx. तो यहाँ पे हम क्या पुट करने वाले हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी हम पुट करेंगे सो दैट वी गेट द ब्रैकेट्स. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, सो वी टेकिंग डिफरेंशिएशन, सो विल गेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x dx इज इक्वल्स टू dt. तो ये जो 2x dx है वो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1 dt, क्योंकि 2x dx का जो आंसर है वो है dt, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे dt. 2 plus t and 3 plus t. Now we taking this whole example outside, that is 1. हम let consider करेंगे इसको. Let 1 upon 2 plus t in second bracket 3 plus t is equals to, since there are two brackets, so a upon 2 plus t plus b upon 3 plus t. Now we taking the LCM. ये जो brackets हमें दिख रहा है वही सेम LCM आता है. सो ये दोनों brackets और ये दोनों brackets कैंसिल हो जाएगा. a हम कैसे लिखेंगे, क्रॉस करके, that is a into 3 plus t and b into 2 plus t. तो ये हमारा होगा फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको हम स्टार इक्वेशन बोलेंगे. अभी ए के नीचे क्या है, 2 plus t इज इक्वल टू 0, देन 2 plus t, देन हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 2 plus t इज इक्वल टू t 0, सो t इज इक्वल टू -2. तो फर्स्ट टाइम हम लेंगे t इज इक्वल टू -2 एंड आफ्टर दैट t plus 3 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू -3 एंड इन दिस वे वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो यहाँ पे -2, जहाँ पर t है वहाँ पे हमें -2 पुट डाउन करना है. a 3 -2, यहाँ पे b 2 -2, यहाँ पे 0 आ जाएगा. सो 3 -2 इज़ 1, सो a इज इक्वल्स टू 1. नाउ पुट t इज इक्वल्स टू -3, सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा. a 3 -3 प्लस b 2 -3, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 -3 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे 2 -3 दैट इज -1, तो -b इज इक्वल्स टू 1, दैट इज b इज इक्वल्स टू -1. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू a एंड b इन द इक्वेशन, दैट इज ये स्टार वाला जो इक्वेशन है वो हम इसमें ये वैल्यू पुट डाउन करेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ यस a की वैल्यू क्या मिली है हमें 1 अपॉन 2 plus t dt. मैंने साइड बाय साइड उसको सेपरेट भी किया है. b का वैल्यू था -1, यहाँ पे प्लस था, दैट इज़ प्लस माइनस माइनस होगा, दैट इज़ b दैट इज़ 1 अपॉन 3 plus t, क्योंकि b की भी वैल्यू हमें 1 ही मिली है. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फॉर्मूला, दैट इज़ 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ log ऑफ x, दैट इज़ log ऑफ 2 plus t एंड यहाँ पे log ऑफ 3 plus t plus a. एंड नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ t, बिकॉज एग्जाम्पल में तो t नहीं है, एग्जाम्पल में x है, तो t हमने किसके लिए कंसिडर किया था, एक्स स्क्वायर के लिए. सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली log ऑफ 2 plus x square माइनस log ऑफ 3 plus x square plus c. एंड सिंस देर इज अ सब्सट्रैक्शन ऑफ log, सो वी कैन राइट द एग्जाम्पल इन दिस वे, टेकिंग द डिविजन, दैट इज log 2 plus x square upon 3 plus x square plus c. So this is the answer. Now see the example number 12. So I is equals to integration of 2 raised to x अपॉन 4 raised to x माइनस 3 इंटू 2 raised to x माइनस 4 dx. तो थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस जो कर रहे हैं वो देख लो, दैट इज़ 2 raised to x, ये जो 4x है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ आपको ये मैंने पहले भी बताया था, 2 raised to 2 raised to x. यस, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर होगा 4, दैट इज़ 4 raised to x. ये जो हमने लिखा है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 2 raised to x raised to 2, बोथ आर सेम. तो यहाँ पे मैंने चूज़ किया दैट इज़ 2 raised to x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 raised to x माइनस 4. तो अभी हम 2 raised to x के लिए t कंसिडर करेंगे. तो इसका जो डेरिवेटिव है 2 raised to x का, a raised to x का डेरिवेटिव हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 2 raised to x log 2 dx इज इक्वल टू dt. तो यहाँ पे 2x dx है तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे. सो 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन log 2. तो फाइनली आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, नाउ सी यहाँ पे हमने
टू रेस टू एक्स के लिए टी कंसिडर किया था, तो यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 4, तो टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 4 इंटू डी टी बाई लॉग 2। तो ये log 2 तो कांस्टेंट है, तो इसको हम आउटसाइड में लेंगे। सो 1 अपॉन log 2 1 अपॉन, नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 4 whose subtraction is 3. सो 4 1s are 4 and 4 minus 1 that is 3. सो मिडल का जो साइन है वो उसमें से दोनों में से जो लार्ज नंबर है उसको हम वो साइन देते हैं, एंड लास्ट में माइनस आने के लिए हम 1 को साइन देंगे प्लस। तो -4 एंड +1 हमें फैक्टर मिले, तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सिंस देयर इज़ नो एनी कोएफिशिएंट। तो t minus 4 and t plus 1, so these factors we get here, and after that we going to let it, हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट मिला है यहाँ पे। तो 2 ब्रैकेट्स है, तो इसके लिए मैंने 2 कांस्टेंट चूज़ किए। सो a अपॉन t माइनस 4 प्लस b अपॉन t प्लस 1, तो एलसीएम भी यही होगा, ये दोनों ब्रैकेट्स इन दोनों ब्रैकेट्स के लिए कैंसिल हो गए। तो a इंटू टी प्लस 1 एंड b इंटू टी माइनस 4। तो यहाँ पे t माइनस 4, तो हम क्या करते हैं आपको पता है, मैंने आपको सिखाया, दैट इज़ t माइनस 4 के लिए हम 0 कंसिडर करते हैं। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t देन, t इज इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट में हम यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट t प्लस 1, यहाँ पे देखो t प्लस 1 है, उसके लिए हम 0 कंसिडर करेंगे। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t, दैट इज़ -1। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज़ t इज इक्वल्स टू 4, तो 1 इज़ एज इट इज़ a, t का वैल्यू है 4 प्लस 1 प्लस b इंटू अगेन 4 माइनस 4, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो 1 इज इक्वल्स टू 5a, 4 प्लस 1 दैट इज़ 5a, एंड सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, इट इज़ 1/5। आफ्टर दैट वी पुटिंग t इज इक्वल्स टू -1, कैसे आया मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये जो वैल्यू है t इज इक्वल्स टू -1 हम यहाँ पे पुट डाउन करते हैं, तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 एंड b -1 -4, तो a इज इक्वल्स a इंटू ब्रैकेट 0 प्लस -5 इंटू b, तो यहाँ पे भी हमें मिला 1 अपॉन -5 और -1/5। सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। सो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log 2, तो देखो यहाँ पर हम आके खड़े थे, तो 1 अपॉन log 2, और ये जो है इसके लिए हमने ये सब्स्टिट्यूट किया था, तो a अपॉन t माइनस 4, तो a का वैल्यू है 1/5 अपॉन t माइनस 4 dt प्लस b अपॉन t प्लस 1, तो b क्या था -1/5 t प्लस 1, तो ये 1 अपॉन log 2 ये दोनों के लिए था, इसलिए मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट करती हूँ। सो 1 अपॉन log 2, ये 1/5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t माइनस 4 dt माइनस प्लस माइनस माइनस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1 dt। आफ्टर दैट 1 अपॉन log 2 1/5, सो इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ 1 अपॉन x। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, यहाँ पे अगर t सिंगल होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ 1 अपॉन x वाला। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, सो व्हाट इज़ द आंसर, दैट इज़ log x, दैट इज़ log ये टोटल ब्रैकेट -1/5। यहाँ पर भी हमें सिंगल t दिख रहा है, मतलब उसका कोई पावर नहीं है, तो हम इसे भी 1 अपॉन x वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ log x, तो log t प्लस 1, एंड आफ्टर दैट वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ t। तो t हमने किसके लिए कंसिडर किया था, 2 रेज़ टू x के लिए, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट डाउन करेंगे, 1/5 log 2 रेज़ टू x माइनस 4 माइनस 1/5 log 2 रेज़ टू x प्लस 1 प्लस 3। तो यहाँ पे 1/5 भी कॉमन है हमें दिख रहा है, तो 1/5 के लिए मैंने बाहर उसको निकालिया सिंस इट इज़ अ कॉमन। सो 1/5 log 2, यहाँ पे इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन है, सो वी कैन टेक द डिवीजन। सो log 2 रेज़ टू x माइनस 4 अपॉन 2 रेज़ टू x प्लस 1 प्लस 3। नाउ दिस इज़ द आंसर। Now see the example number 13. So integration of 3x minus 2 upon x plus 1 bracket square and x plus 3. Now see there is a square. So the last वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वहाँ पे जो प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये टोटल मैंने बाहर ले लिया, लेट 3x माइनस 2, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़, तो ये 2 बार आया है, मतलब वी हैव टू चूज़ द 3 कांस्टेंट a b c, तो मैंने a b c ले लिया। x प्लस 3 तो जैसे ऑर्डर में है वैसे ही हम लिख रहे हैं, x प्लस 3 लिया मैंने यहाँ पे लिखा, इसके लिए हमने ऊपर एक कांस्टेंट ले लिया, दैट इज c।
यहाँ पे x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर तो मैंने ले लिया यहाँ पे b मैंने लिया। इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसका पावर 2 है तो इसका पावर 1 आएगा, तो a अपॉन x प्लस। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो दिस इज माई स्टार स्टे। आफ्टर दैट वी गोइंग टू टेक द एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेना है देखते। तो x प्लस 3 तो यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट्स तो सेम ही है, इसमें से ज़्यादा पावर जिसका है वो हम एलसीएम में लेते हैं, तो इसका पावर ज़्यादा है तो ये एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ पर भी x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर x प्लस 3 दोनों सेम आते हैं, तो x प्लस वन स्क्वायर यहाँ पे दोनों ये कैंसिल हो गए। तो अभी ये ऊपर वाला 3x माइनस 2 ऐसे आ जाएगा। एक ऐसे लिखना है वो आप देख लो। यहाँ पे नीचे क्या है, x प्लस वन है, करेक्ट। और हमारा जो एलसीएम है उसमें x प्लस वन का स्क्वायर है, मतलब एक x प्लस वन वाला ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, तो वो x प्लस वन वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट x प्लस 3 वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आफ्टर दैट x प्लस वन स्क्वायर डिनोमिनेटर में b के है, मतलब इन दोनों में से ये तो उसके पास है, क्या नहीं है, x प्लस 3 नहीं है, तो मैंने इसके पास ही लिख दिया। बाद में यहाँ पे c के डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 3 है, मतलब ये है, क्या नहीं है, ये नहीं है, तो x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। सो इस प्रकार से हमें ये लिखना है। सो नीचे हम उसको ले लेंगे, दैट इज़ 3x माइनस 2, और ये टोटल पूरा का पूरा ऊपर का पार्ट ऐसे ही आ जाएगा। नाउ अभी हमें क्या करना है, a के नीचे क्या है, x प्लस वन, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पे, तो x का वैल्यू मैंने -1 पुट डाउन किया, तो 3 इंटू ब्रैकेट -1 -2 a इज इक्वल्स टू a इंटू ब्रैकेट x का वैल्यू है -1 + 1, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू है -1, तो मैंने यहाँ पे पुट डाउन किया +3। यहाँ पर भी x -1 है, तो -1 + 1 इट इज़ ब्रैकेट स्क्वायर, सो इट विल बिकम 0। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -3 - 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 - 1 दैट इज़ 2, 2b, एंड सो b इज इक्वल्स टू -5/2। सो दिस इज द वैल्यू। आफ्टर दैट नाउ सी दिस वन, ये ले लेंगे ब्रैकेट स्क्वायर वाला ब्रैकेट थोड़ा हम बाजू में रखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, सो यहाँ पे x आ जाएगा -3, तो x इज इक्वल्स टू -3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज़ 3 इंटू ब्रैकेट -3 - 2। यहाँ पे अगर -3 हम पुट करते हैं ये टोटल 0 हो जाएगा, सो a इंटू 0। यहाँ पर भी -3 रखेंगे तो b 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू पुट करेंगे -3 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो 9 - 2 3 3 = 9, सो -9 - 2 इज इक्वल्स टू -3 + 1 दैट इज़ 2, 2 स्क्वायर दैट इज़ 4c, सो -11 इज इक्वल्स टू 4c, सो c इज इक्वल्स टू -11/4। सो इस प्रकार से हमने b और c की वैल्यू फाइंड आउट की। नाउ सी हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू पुट डाउन करने के लिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। इस टाइप का अगर एग्जाम्पल आता है तो हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू रहती है आपको पता है 0 1 2, यहाँ पे आता है -1 एंड -2। ओनली दिस वैल्यू वी कैन टेक। आउट ऑफ दिस वी ऑलरेडी टेकन द वैल्यू ऑफ x एज अ -1 एंड -3। तो पहले हम 0 लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 हमने पुट डाउन किया। यहाँ पे -3 के बदले हम 0 लिखेंगे। ऊपर वाला एक इक्वेशन है लेकिन अभी मैं इसको ले रही हूँ। नाउ सी यहाँ पे -2, आफ्टर दैट a एज इट इज़, x का वैल्यू 0 + 1 0 + 3 प्लस b इंटू 0 + 3 0 + 3 एंड यहाँ पे 0 + 1 ब्रैकेट्स पर। हम देखते हैं कि हमें वैल्यू मिल जाती है या नहीं जाती है। अगर नहीं मिलती रही तो हम दूसरा वैल्यू ले लेंगे। तो -9 - 2, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे है दैट इज़ 3 इंटू 0 दैट इज़ 0 एंड -2, यहाँ पे a का वैल्यू दैट इज़ यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1, यहाँ पे मिल जाएगा 3, सो 3 1 = 3, 3a यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे b 3b हमें मिलेगा, और यहाँ पे 1 स्क्वायर दैट इज़ 1c मिलेगा। तो यहाँ पे हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो b और c का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है।
तो बी एंड सी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट डाउन करेंगे। बी था -5/2 एंड सी था -11/4। तो -2 3a यहाँ पे काउंट करके हमें मिलेगा -15/2 और -11/4। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये माइनस था तो प्लस होगा 15/2 प्लस 11/4 -2 = 3a। इन तीनों का हम साइमल्टेनियसली एलसीएम निकालेंगे। तो इनमें से लार्जेस्ट नंबर था 4, तो मेरा एलसीएम आएगा 4। सो 2 2s are 4, सो 2 × 15 दैट इज़ 30। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 11 ऐसे आ जाएगा। 1 4s are 4, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 2s are 8 = 3a। तो ये टोटल वैल्यू फाइंड आउट करके हमें मिल जाएगी 33/4। 3a = 33/4। सो a = 3 3s 3 1s are 3, 3 1s are, so 11/4. So this is the value of a. And now we are going to put down all these value in this equation a b c। तो a क्या था हमारा 11/4, तो मैंने यहाँ पे लिखा 11/4 एंड x + 1। यस, साइड बाय साइड मैं लिखा रही हूँ। b, नाउ b का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था, दैट इज़ -5/2। तो मैंने यहाँ पे ले लिया -5/2 x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c का वैल्यू था -11/4 एंड x + 3 एंड ये सब के लिए dx। तो dx मैंने हर एक की जगह लिखा है। नाउ वी गोइंग टू सेपरेट द कांस्टेंट टर्म्स आउटसाइड द इंटीग्रेशन। सो 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx -5/2 1/x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx एंड 11/4 दैट इज प्लस माइनस -1/x + 3 dx। तो 11/4, सो 1/x वाला पैटर्न है, तो इसका आंसर आएगा log x + 1 -5/2। तो ये जो है मैंने उसको इस तरह से लिखा है, दैट इज़ x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर न्यूमरेटर में आता है तो उसका पावर हो जाता है -2। यहाँ पे 11/4 log x + 3 + c। तो ये इसको मैंने ऐसे ही कंटिन्यू किया है। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं। सो -2 + 1, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे भी -1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हम प्लस करेंगे, और ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये -1 मैंने ऐसे ही लिखा है यहाँ पे ऊपर, ये टर्म ऐसे नीचे आ जाएगी। ये जो माइनस पावर है उसको मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और ये -1 माइनस साइन मैंने ऊपर लिखा है, दैट इज़ -1/x + 1, सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव। यस, एंड आफ्टर दैट विल टेक दैट इज़ माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये देखो 11/4, ये भी 1/x वाला पैटर्न है, तो log x + 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये भी मैंने ऐसे नीचे कंटिन्यू किया है। नाउ देखो यहाँ पे हमें दो टर्म्स मिले हैं log के, 11/4 log x + 1, यहाँ पर भी 11/4 log x + 3। तो इसमें से हम 11/4 कॉमन निकालेंगे, और सिंस देयर इज़ अ माइनस साइन, log x + 1 माइनस log of x + 3 एंड रिमेनिंग टर्म दैट इज़ माइनस प्लस 5/2 1/x + 1 + c। So since there is a division, since there is a subtraction, we take the division. So 11/4 log x + 1/x + 3 plus 5/2 into x + 1 + 6. So this is the answer. थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल था, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप आप कर जाते हैं तो ये बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। सो इंटीग्रेशन ऑफ 5x² + 20x + 6/x³ + 2x² + x। तो ये जो है यहाँ पर भी x है, तो हम इसमें से x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 2x + 1 एंड नाउ यू नो दैट इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो न्यूमरेटर इज़ एज इट इज़, x एज इट इज़, एंड इट इज़ x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर आप ये ओपन करते तो आपको ये मिल जाता है। तो ये जो टोटल है उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 5x² + 20x + 6/x into ब्रैकेट x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सिंस देर आर 2 ब्रैकेट्स, बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट आ जाएगा, ये 2 और ये। तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे ऑर्डर में है वैसे। सो x + 1 का स्क्वायर, उसके बाद x + 1 और उसके बाद x। तो यहाँ पे मैंने a b c करके ले लिया है। नाउ सी 5x² + 20x + 6 = अभी एलसीएम में देखो हम क्या मैंने एक स्टेप स्किप किया है। एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इन दोनों में से जिसका पावर ज़्यादा है वो एलसीएम में आ जाएगा, दैट इज़ x एंड x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हमारा एलसीएम है, मैंने साइड में आपको समझने के लिए लिखा है। तो हम a के पास आ जाएंगे, a के डिनोमिनेटर में x है, मतलब क्या नहीं है, x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ b, यहाँ पे क्या है, x + 1 है, इन दोनों में से क्या नहीं है, एक x + 1 वाला ब्रैकेट नहीं है और x नहीं है,
तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे वो लिख डाला। आफ्टर दैट सी, इसके डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 का स्क्वायर, क्या नहीं है, x नहीं है, तो मैंने x यहाँ पे लिखा है। अभी ये एलसीएम का डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है वो x है, तो यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब हम क्या करते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करके आंसर फाइंड आउट करें, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो x इज इक्वल टू 0, जहाँ पर भी x है वहाँ पे हमें 0 लिखना है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस 6, यहाँ पे भी 0 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे x इंटू है तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके हमें मिला 6, क्योंकि ये दोनों 0 हो गए, 6 और यहाँ पे आ जाएगा a, तो a का वैल्यू मुझे मिल गया 6। आफ्टर दैट सी द नेक्स्ट वन, x इज इक्वल्स टू मैंने -1 पुट किया है, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देख लो आप, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हम कंसिडर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू -1। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली है। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जहाँ पर भी x था 5x² तो -1, यहाँ पर भी x था तो -1 एंड 6, यहाँ पे x था तो हमने लिख दिया -1 एंड -1 प्लस 1 करके देखो आप, यहाँ पे प्लस माइनस दैट इज यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो ये भी टोटल 0, मुझे a इसका मतलब है a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा एंड c इंटू -1। तो ये सॉल्व करके हमें c का वैल्यू मिल गया, c इज इक्वल्स टू 9। आफ्टर दैट वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ x एज 1। सो 5 इंटू 1, मैंने आपको ये बताया था, मैंने कहाँ से ले लिया, नंबर लाइन पे हमने 0, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे -1 1 2, तो उसमें से -1 मैंने पहले से ले लिया था, 0 भी ले लिया था, तो इसलिए मैंने 1 वैल्यू ले लिया है। ये किस कंडीशन में हम करते हैं, जहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर हमें दिखाई देता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 0 ले लिया था, यहाँ पे -1 ले लिया था, जहाँ पर भी स्क्वायर आता है तब हम ये नंबर लाइन वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो 1 वैल्यू हमने नहीं लिया था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो 1 स्क्वायर, जहाँ पर भी यहाँ पे हमें -1 दिखाया है, यहाँ पे हम 1 पुट डाउन कर रहे हैं, सो 1 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे अभी वैल्यू हमने ये पुट डाउन किया है। तो 5 प्लस 20 प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a, बिकॉज 1 प्लस 1 2 स्क्वायर दैट इज़ 4a प्लस 2b दैट इज़ 1 प्लस 1 दैट इज़ 2 इंटू 1 दैट इज़ 2b प्लस c। एंड अभी हमने c का वैल्यू फाइंड आउट किया था 9, a का वैल्यू भी हमने 6 फाइंड आउट कर लिया था, और c यहाँ पे a का वैल्यू भी हमने 6 फाइंड आउट किया था, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट डाउन की है 2b प्लस 9, तो 31 इज इक्वल्स टू ये 24 प्लस 9 दैट इज़ 33 प्लस 2b, तो 31 माइनस 33, सो 2b का वैल्यू हमें मिला -2, सो b इज इक्वल्स टू -1। सो इन दिस वे वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a का वैल्यू था 6, तो ये वैल्यू हम हमारे स्टार इक्वेशन में पुट डाउन करेंगे। तो पहला हमारा जो ब्रैकेट था वो था a/6, बाद में b/x प्लस 1 एंड c/x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो a/x दैट इज 6/x प्लस b का वैल्यू था -1/x प्लस 1 प्लस c दैट इज 9/x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो 6 को हम आउटसाइड में लेंगे, 1/x dx माइनस 1/x प्लस 1 dx प्लस 9/x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, यहाँ पर भी log x प्लस 1 मिलेगा। ये जो है x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो मैंने साइड में करके लिखा है, दैट इज़ -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो -1 और यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। इसका पावर हम पॉजिटिव करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन मैंने ऐसे ही लिखा है अपॉन x प्लस 1, सो दैट दिस पावर विल बिकम पॉजिटिव, तो -1/x प्लस 1 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो 6 है वो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ log ऑफ x रेज़ टू 6 माइनस log ऑफ x प्लस 1 माइनस 9 अपॉन प्लस माइनस 9/x प्लस 1 प्लस c। And since there is a subtraction, we can take the division, log of x raised to 6 upon x plus 1 minus 9 upon x plus 1 plus c. So this is all about the first 14 examples of this question number 1, and the remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.